मैम आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि अभी खाने का टाइम भी है। अच्छा ठीक है, ओके। सो the special purpose diodes are the diodes which are p-n junction diodes, but they have some special purposes. किसी से लाइट एमिट हो रही होती है, कोई लाइट एब्जॉर्ब करके करंट को जनरेट कर रहे होते हैं, कुछ रिवर्स बायस में काम कर रहे हैं, कुछ फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे हैं। और लेट्स सी व्हाट आर दोज डायोड्स। नंबर वन इज द जीनर डायोड, सेकंड इज लाइट एमिटिंग डायोड, अ फोटो डायोड एंड अ वेरेक्टर डायोड। और भी बहुत सारे डायोड्स हैं, लेकिन हम जो है हमारे उसमें कोर्स में इतने ही हैं, तो हम इसी को देख लेंगे और फिर उसके बाद इफ यू वांट तो हम अगले कुछ और डायोड्स भी फिर इफ वी हैव एम्पल टाइम इन द एंड, so if you want to do some more diodes we can even study those diodes as well. तो सबसे पहले we are going to study the Zener diode. अब Zener diode जो है ये एक स्पेशल पर्पस, अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो कि करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी अलाउ करता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी अलाउ करता है, ठीक है। एंड इट हैज अ सिंबल like this, as you can see it on the screen. This is the symbol of a diode. You see what is the difference between the Zener diode symbol and an ordinary p-n junction diode symbol? You see, this looks like a Z, right? This is Z, and in the p-n junction diode, it is just a straight line. So that is the difference between a symbol of a Zener diode and a simple diode. ठीक है। इसके बाद जो Zener diode है, Zener diode is just like an ordinary p-n junction diode, but that is used in the reverse bias with a slight modification so that it can work easily in the reverse bias. जो p-n junction diode होता है वो भी रिवर्स बायस में कुछ ना कुछ करंट जो है उसको अलाउ करता है और उसमें एक फिनोमेना अकर करता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन। मैं अभी ब्रेक डाउन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसका क्या मतलब है। लेकिन जो एक आम, दिस इज एन ऑर्डिनरी डायोड, ऑर्डिनरी p-n junction diode. When this is used in the reverse bias mode, it cannot function as a Zener diode. Why? Because the Zener diode is a specially designed, a special purpose diode which has very high level of doping. इसकी जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इसको हम स्पेशल पर्पस डायोड भी कहते हैं। और हाई डोपिंग की वजह से इट कैन बी यूज्ड एज it can be used as a diode, a p-n junction in the reverse mode. अभी हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल करेंगे और ये मुझे बताएं कि क्या यहां तक सब बात क्लियर है। That an ordinary diode when used in the reverse bias cannot function as a Zener diode. Why? Because a Zener diode is a specially designed diode which has a very high level of doping. Doping की वजह से we change the properties of a p-n junction diode to function it as a Zener diode. Now, what do you mean by a Zener diode? उसका क्या मतलब है Zener diode का? Zener diode के लिए सबसे पहले हमें सिंपल एक जो हमारा जो p-n junction diode होता है, बिल्कुल सिंपल, उसको हम थोड़ा सा जरा स्टडी करके देख लेते हैं। एक थोड़ी सी उसमें रिवीजन हो जाएगी कि सिंपल जो p-n जंक्शन डायोड है और उसमें जो जो फिनोमेना अकर करता है जिसको हम फिर Zener डायोड में हाईलाइट करते हैं, वो फिनोमेना है क्या? दैट इज बेसिकली अ प्रिंसिपल ऑफ Zener डायोड। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू take a p-type
material and an n-type material and make a p-n junction, so what happens? You have minority carriers and majority carriers in the p-type region and in the n-type region. So in the p-type region, these are the free electrons, which are minority carriers. These blue circles with black circles, they show holes, and they are majority carriers in the p-type. Similarly, in n-type, these are the electrons which are in majority, right? These are in majority, the blue circles, while the blue circles with black circles, they represent holes, and they are minority carriers in the n-type region. Once the junction is formed, अब जंक्शन में, if you remember, जंक्शन में हमने कहा था कि कुछ आयंस बनते हैं. आयंस कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं और नेगेटिव आयंस भी बनते हैं, एंड ऑल दैट happens at the middle of at the junction of p and n materials, और उसको हम कहते हैं जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर. ठीक है, तो जब हम इसको रिवर्स बायस देते हैं इस पीएन जंक्शन को, तो क्या होगा कि उसमें कुछ न कुछ जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू करेंगे. ठीक है, और उसमें वो कैसे फ्लो करेंगे ये भी अभी आगे जाके हम देखते हैं. और जैसे जैसे आप रिवर्स बायस को, ये इसको इस वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये जो बैरियर आपको नजर आ रहा है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये देखें, जैसे ही आपने रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज की, ये जो जंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है. ये था जब हमारे पास ये एक बैटरी सोर्स था. जब हमने इसको इंक्रीज किया, आपका ये जंक्शन बैरियर इंक्रीज हुआ. जब आपने इसको इंक्रीज किया तो ये जंक्शन बैरियर इंक्रीज हुआ. ठीक है, अब ये इंक्रीज करने से यहां पर क्रिएट होता है एवलांच. डज एनीवन नो व्हाट इज एन एवलांच? यस मैम, बहुत ज्यादा. यस मिस. क्या एवलांच क्या है? बर्फ मिस, ये जो बर्फ अक्सर मतलब सही तरीके से जमी नहीं होती पहाड़ों पे, तो वो किसी न किसी ट्रिगर की वजह से जो है सारी की सारी नीचे आ जाती है, तो उसे एवलांच कहते हैं. या फिर मिस इसमें वो मट्टी का भी होता है कि अगर मतलब कोई मट्टी का पहाड़ है तो उसमें ज्यादा बारिश हुई है तो वो भी है एवलांच में ही आता है. वेरी गुड. लेकिन एवलांच का मतलब है जी, जब बहुत ज्यादा करंट अचानक फ्लो करना शुरू कर देता है. नहीं, इसको तो नहीं कह सकते हैं. मतलब एवलांच की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू करता है, लेकिन एवलांच इटसेल्फ जो है वो ज्यादा करंट का फ्लो नहीं है. दैट इज बेसिकली जनरेशन ऑफ द कैरियर्स. वो जो है वो एवलांच होता है. जैसे अभी ये जैन ने बात की है कि जब उस पे किसी भी स्नोई पीक के ऊपर जब टॉप से वो आता है तो वो बहुत छोटा सा बॉल होता है स्नो का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आते 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 वो बहुत इतना ह्यूज हो जाता है कि दैट बिकम्स क्वाइट डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, तो stimulant for to create a huge amount of energy. Stimulant to create a huge amount of energy, इसको कह सकते हैं avalanche. it's the created energy. मतलब जो स्नो की मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह अभी हम फिर ये एनर्जी पे भी बात कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पे भी बात करेंगे कि जिस तरह से वहां से ऊपर से टॉप से जो स्नो आ रही होती है तो वो शुरू में बहुत छोटी होती है. इट हैज वेरी लेस नंबर ऑफ स्नो, आप उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नो आप उसको कह सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे वो मोमेंटम गेन करती जाती है, वो नीचे आती जाती है, उसके साथ और स्नो जो है वो बीच में एड अप होती जाती है, और अल्टीमेटली जब वो बहुत नीचे तक पहुंचती है जहां वो स्टॉप होती है, तो वहां पे एक ह्यूज बिग अमाउंट ऑफ स्नो जो है लेंथ वाइज विड्थ वाइज सब वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो चुका होता है. हालांकि जब वो स्टार्ट होता है वो ऐसा नहीं होता. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का भी यही है कि जो इनिशियली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
they get sufficient energy and they strike against the stable ions or the atoms and they knock their electrons out. और ये कैसे होता है, ये देखें यहाँ पर इसमें मैंने आपको कहा है कि जैसे जैसे आप ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप इसको सफिशिएंट रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो भी फ्लो कर रहे हैं. लेकिन ये क्या कर रहे हैं, नाउ व्हेन दिस हो, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है, दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लीशन रीजन. ये सब कुछ जो कुछ भी होगा, दिस इज हैपनिंग इन द डिप्लीशन रीजन. व्हाई? बिकॉज कैन यू सी ऑल ऑफ दीज एटम्स, they have their complete outermost shells and they are ions. ठीक है, ये ions हैं और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब वहां पे आते हैं तो क्या होता है कि they gain sufficient energy, kinetic energy after the certain amount of reverse bias, and what happens, they strike against the stationary atoms. ठीक है, और उनको क्या करेंगे, ये स्ट्राइक करेंगे और जैसे ही ये स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स, दे डिसलॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स. फॉर एग्जांपल, अगर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, लेट्स से ये आया, इसने यहां पर नॉक किया, it knocked at this atom, at this particular electron, and it knocked out an electron out of this atom. ठीक है, तो एक की बजाय दो हो गए. ठीक है, अब जो दो एटम्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फर्दर जाके स्ट्राइक करेंगे और एटम्स को और इलेक्ट्रॉन्स को. दे विल इम्पार्ट देयर एनर्जी एंड दे विल dislodge them from their parent atoms. ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या होगा कि यहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते जाएंगे. इसी तरह से जितने जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको और क्रिएट करते हैं. बिल्कुल उसी तरह से आई नीड टू एडमिट समबडी. अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जिस तरह से आप लोग, जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, एक बंदे को पता चलता है, वो दो को बताता है, दो तीन को बताते हैं, और इस तरह से एक एवलांच क्रिएट होता है एंड विद इन वेरी लेस टाइम यू गेट टू नो दैट द क्लास हैज स्टार्टेड. ठीक है, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम को जाके करेगा, वो एक और को नॉकआउट करेगा, वो आ जाएंगे, फिर दूसरे वो दो जो हैं दो और को करेंगे, और इस तरह से ये करते करते क्या करेंगे कि ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट करेंगे. कैन यू सी द प्रोसेस, ये वाला कि ये एक था, इसने दो जी मैम यहाँ से तो मेरे ख्याल में नेट का इशू था, तो वो एवेलेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे. अच्छा, बाकी सबको समझ में आ गया? नूर रहमान, आपको मैं थोड़ा सा बाद में बता सकती हूँ ये तो मैं क्लास के साथ तो नहीं जा सकता ना. अच्छा, एनीवे आई विल रिपीट कि एवलांच जो है, जब आप लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब दूसरे स्टेशनरी एटम्स को जाके स्ट्राइक करेंगे, ये वाला प्रोसेस है. ये एक इलेक्ट्रॉन आया, माइनॉरिटी कैरियर, इसने स्ट्राइक किया इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, और इसने उसको नॉकआउट कर दिया. नॉकआउट मीन्स कि उसको डिसलॉज किया, उसको वहां से रिमूव करवा दिया. इट हेल्प इलेक्ट्रॉन, it helped another electron from a stationary atom to come out and participate in the current. ठीक है, तो इसने क्या किया कि यहां से इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, इसको कर दिया. ये देखें यहां पर ये होल्स क्रिएट हो गए हैं, ये होल्स क्रिएट हुए हैं, और इनके साथ एक इलेक्ट्रॉन पहला था और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि
इसने नॉकआउट किया है, जो कि इसने यहां से डिसलॉज किया है, जो कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम एंड इट हैज क्रिएटेड अ होल। अब ये वाले जो दो क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पहले वाला और एक जो नॉकड आउट है, ये फर्दर जाके फिर और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे एंड यू सी व्हाट विल हैपन दैट ये इलेक्ट्रॉन किस तरह नॉकआउट हुआ मैम, किस वजह से, किस फोर्स की वजह से? जो हमने इधर पीछे इसको रिवर्स एनर्जी दी है, रिवर्स बायस दिया है, ये रिवर्स बायस जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये हम रिवर्स बायस की हम जीनर डायोड को समझने के लिए ब्रेकडाउन समझना चाह रहे हैं। ब्रेकडाउन समझेंगे तो हमें जीनर डायोड जो है वो समझ में आएगा। तो अगर हमारे पास ये एक जंक्शन मौजूद है और हम उसको रिवर्स बायस में कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस में हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे ये, तो ये जो वो है जंक्शन की जो विड्थ है वो इंक्रीज करती जा रही है, ये बैरियर इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, ये बैरियर इंक्रीज करता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। आपने रिवर्स बायस में किया हुआ है, सो यू सी दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। बट एट द सेम टाइम इफ यू सी दैट दिस इज पुशिंग the electrons, ये वाले electrons जो कि minority carriers हैं, they are pushing the electrons across the junction which contribute towards the minority carrier current। इसी तरह से ये जो प्लस है, ये होल्स जो हैं एन टाइप रीजन में से वो भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे जंक्शन बैरियर को, ठीक है। तो एट द सेम टाइम these minority carriers they are gaining the they are contributing towards the saturation current। अब ये वाला जो सारा फिनोमेना है ये आगे क्या करता है और किस तरह से एवलांच आता है, हम वो स्टडी कर रहे थे। अब देखें, ये हमने कहा कि इस जगह पे, इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो आ रहे हैं, होल्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पी साइड एंड होल्स फ्रॉम द एन साइड। और जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं अपने एक सिंपल पीएन जंक्शन को, इस वक्त ये जीनर जंक्शन नहीं है, दिस इज अ सिंपल पीएन जंक्शन। डायोड को हम आगे देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी फैब्रिकेशन में ही फर्क होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर ये आम डायोड में जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो एन में से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये जाएंगे एन में से, और पी में से होल्स जाएंगे। लेकिन चूंकि ये पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, तो यहां से पी में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और एन में से होल्स जा रहे हैं। दीज आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम ये फिनोमेना देखते हैं कि जब ये माइनॉरिटी कैरियर्स आते हैं, जंक्शन से गुजरते हैं, तो जंक्शन में क्या होता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये वो फोर्स है कि अगर हम वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा कि these electrons will gain sufficient energy and they will knock off, they will strike out, they will remove more electrons from the stable atoms, from the stationary atoms, from the ions, वहां से निकालेंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और होल्स क्रिएट होते जाएंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये इनका काम है कि ये औरों को इन्फॉर्म करें और क्लास मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, ये और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें, ठीक है। तो इनको जब ये बाहर निकालेंगे तो आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जनरेट होंगे। ये रिवर्स बायस में आप जब वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, सो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स और मोर एंड मोर फ्री कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एंड दीज जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द करंट। और ये जो वोल्टेज, वो वोल्टेज जिस पे आपको करंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन बेसिकली कहते किसको हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ब्रेक डाउन?
वैसे ही मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रेकडाउन किसको कहते हैं, मुझे ये चाहिए है कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन। तोड़ फोड़। मिस टूट जाना, और इधर ब्रेकडाउन का मतलब ये होगा कि ये जो जंक्शन है ये खत्म हो जाएगा, मतलब जो डायोड है वो खराब हो जाएगा। वेरी गुड जैन। उसका मतलब है, ब्रेकडाउन का मतलब है कोई खराबी पैदा हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि माई कार ब्रोक डाउन राइट इन द मिडल ऑफ द वे, ठीक है, तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। किसी भी चीज का प्रॉपर काम ना करना, उसका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना। तो देखें हमारा जो जंक्शन होता है उसमें ये स्टेबिलिटी होती है, या इसमें ये स्टेबल आयंस मौजूद होते हैं। तो उनको जब नॉकआउट कर देते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो जंक्शन जो है वो उस फॉर्म में नहीं रह जाता जिसमें होता है। बेसिकली इसमें जनरेशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन वहां खराबी हो गई है, ठीक है। और हर डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज होती है कि इनवर्स पे आप कितनी ज्यादा वोल्टेज आप दें कि ये डायोड जो है वो सेफ मोड में काम कर सके। अदरवाइज ब्रेकडाउन अकर करता है, और ब्रेकडाउन ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो, और वो रिवर्स वोल्टेज की वजह से, रिवर्स बायस की वजह से वो वहां पर काम करें, ठीक है। और एक खास पॉइंट आता है कि वहां पर जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। एम आई क्लियर टू यू? ये बात समझ आइए कि एक खास अमाउंट जब ये जनरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, या कैरियर्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री कैरियर्स कहते हैं, कैरियर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जब ये जनरेट हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, सो दे स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द करंट, और इस तरह से जो करंट है वो हाई हो जाता है, ठीक है। और जो ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन फिनोमेना जो है ये बेसिकली पीएन जंक्शन का फिनोमेना है, जिसके ऊपर जीनर डायोड की कंस्ट्रक्शन बेस करती है। जीनर डायोड इज नॉट एन ऑर्डिनरी डायोड, it is not an ordinary pn junction diode, it is a special diode। और उसमें क्या होगा कि उसमें उसकी जो पी की डोपिंग और एन की जो डोपिंग है वो बहुत हाई लेवल की होती है। वो इतनी ज्यादा होती है कि फिर वहां पर जो ये जो डिप्लीशन रीजन जो बनता है ये इतना कंजेस्टेड होता है, ये इसमें ऑलरेडी इतनी वो मौजूद होते हैं कि जो आयंस हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल एटम्स मौजूद होते हैं कि अगर फिर हम कम अमाउंट ऑफ करंट भी, वोल्टेज भी दें तो करंट जनरेट हो जाता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हैवी डोपिंग, ठीक है। अब जब देखें कि यहाँ पे जो सेम अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज अगर हम इसको दे रहे हैं, तो इसके बावजूद इसमें ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और जितने हमारे पास ब्रेकडाउन में हुए थे, पीएन जंक्शन के ब्रेकडाउन में हुए थे, उससे कहीं ज्यादा सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज के लिए जीनर में मौजूद होंगे। तो हम ये कहते हैं कि जो जीनर डायोड होता है that is a little different than the PN junction diode. However, the Zener diode is operated in the reverse bias mode. और Zener breakdown जिस वोल्टेज पे अकर करता है, जो ये रिवर्स बायस वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जिस पे Zener डायोड काम करना स्टार्ट करता है, that is called the Zener voltage. And this Zener voltage is greater, Zener breakdown is sharper than the normal breakdown or avalanche breakdown. एक वो जो हमने पहला किया था पीएन जंक्शन के लिए, that was avalanche breakdown. Zener के लिए it's the Zener breakdown. So Zener breakdown occurs at the voltage lower than the avalanche breakdown. Is this clear? ये बात समझ आइए? मैं वो करूं, एक्सप्लेन करूं, रिपीट करूं इसको, कि जो हमने अभी एवलांच का जो हमने पढ़ा है, तो एवलांच जो है, अच्छा, रिपीट करें। एवलांच ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पे अकर करता है, जीनर ब्रेकडाउन उससे बहुत कम वोल्टेज पे अकर करेगा।
ठीक है। एवलांच की जो वोल्टेज होती है, जो अगर हम सिंपल पीएन जंक्शन में एवलांच क्रिएट करें और ब्रेकडाउन देखें तो वो वोल्टेज जो है वो ज्यादा होती है, जबकि जीनर ब्रेकडाउन में चूंकि या जीनर डायोड में चूंकि हमने हाईली डोप्ड मटेरियल्स यूज किए होते हैं, तो वहां पर वोल्टेज जो है कम वोल्टेज पे सेम इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। So Zener breakdown voltage, the voltage at which the Zener breakdown occurs, and the avalanche or the breakdown voltage at which the avalanche breakdown occurs. So those are the voltages. ठीक है? The voltage at which the Zener breakdown occurs, that is the Zener breakdown voltage, and the other is the breakdown voltage at which the avalanche breakdown occurs. So they have a comparison in a sense that the Zener voltage is lesser than the avalanche breakdown voltage. कम वोल्टेज पे हम वो वाला काम कर सकते हैं जो कि हम हाई वोल्टेज पे यहाँ काम करते हैं. So that is why Zener breakdown is very useful, and we have made use of the reverse bias voltage to make a Zener diode work in the reverse bias. और कम वोल्टेज पे हमें ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है ड्यू टू हाई डोपिंग. अब जरा इसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि जो कि फिनोमेना अकर करता है, दिस इज द फिनोमेना दैट अकर्स इन द Zener diode, and Zener voltage is the voltage where the Zener breakdown occurs. ठीक है. और अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, जो भी हमने ये वाली वोल्टेज, ये वोल्टेज जब जीनर वोल्टेज से बढ़ जाती है, क्योंकि जीनर वोल्टेज जो होती है दैट इज ऑलवेज सेटल्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग फैब्रिकेशन. जीनर डायोड की एक खास वोल्टेज होती है कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हमें उससे ज्यादा देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर जीनर वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट्स है, तो हमें ये जो रिवर्स वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज, ये हमें 6 वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगी, तो वो जीनर रीजन के अंदर जाके तो कंडक्शन स्टार्ट करेगा. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस दैट द जीनर वोल्टेज इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, एंड when the applied reverse voltage becomes greater than the Zener voltage, at which the voltage at which the Zener breakdown occurs, so that is the point where the Zener diode starts working. And when the applied voltage, reverse voltage, becomes greater than the Zener voltage, the diode becomes conductive. और फिर उसमें फर्दर जो है एवलांच और वो जो है वो अकर नहीं कर रहा होता, फर्दर ब्रेकडाउन की उसमें गुंजाइश नहीं रहती, सिर्फ उसमें कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सो एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द जीनर डायोड? अगर आपने सुना हो तो जीनर डायोड जो है वो हमेशा जो है, बल्कि ज्यादातर जो है वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए काम आता है, वोल्टेज को फिक्स्ड रखने के लिए काम आता है. ये भी हम देखते हैं कि कैसे. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेसर देन द एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज. एंड जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जीनर वोल्टेज इज एडजस्टेड, इट इज सेटल्ड, इट इज फिक्स्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग फैब्रिकेशन. ठीक है. ये बेसिकली जीनर डायोड का ग्राफ है कि अब बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी कि ये ऑर्डिनरी डायोड की तरह से काम करता है इन द फॉरवर्ड रीजन, और ये वाला जो है, ये रीजन जो है ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट का रीजन, कि जब आप रिवर्स वोल्टेज दे रहे होते हैं लेकिन वो यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक जब तक वहां तक नहीं पहुंचती, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो यहाँ पर ये जनरेट हो रहा होता है. और ये है जीनर रीजन, ये जीनर रीजन है ये वाला, जिसमें के डायोड जो है वो कंडक्टिव मोड में चला जाता है. इट स्टार्ट्स कंडक्शन इन द रिवर्स बायस. आप देखें ये जो
थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज फॉर द रिवर्स बायस एंड दिस इज द ज़ीनर रीजन वेयर दिस पर्टिकुलर डायोड, दिस स्पेशल पर्पस डायोड स्टार्ट्स वर्किंग। और इसकी कुछ जो वो हैं एग्जांपल्स हैं या इसकी एप्लीकेशंस, वो हम देख लेते हैं। एक तो ये देख लें कि इस डायरेक्शन में ये जो फॉरवर्ड रीजन है, दिस वन, दिस इज द फॉरवर्ड रीजन, इस रीजन में द डायोड हैज द वोल्टेज अराउंड 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, ये बिल्कुल पीएन जंक्शन की तरह कि जब उसका पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, तो वो देता है 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, जो प्रैक्टिकल डायोड है। हम लोगों ने जो क्लैंपर्स में किए हैं वो हमने आइडियल डायोड्स किए हैं। ठीक है, सो इन दिस केस यू सी when it is forward biased, so it has 0.7 volts across its junction. But then from 0 to VZ, this is negative and this is positive. This looks like an open circuit. और यहाँ पर आपको ideally this is 0 volts, यहाँ पे 0 volts आपको मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो डायोड है, ये जो रीजन है, which is the Zener region, and this is the voltage, the Zener voltage where or at which the Zener function appears यहाँ पे, or the Zener breakdown occurs. This is the voltage, and this is the Zener region where the diode is operated in the reverse region, in the reverse bias. ये VZ वो वोल्टेज है जहां पर Zener ब्रेकडाउन अकर करता है, और ये वो रीजन है जिसमें के जो डायोड है दैट स्टार्ट्स कंडक्शन। अब यहां पर क्या होगा कि दिस डायोड in this region, in the Zener region, that will show the same voltage that has been adjusted by the manufacturer. ये है वो Zener voltage जो कि यहाँ पर हमने बात की थी कि इधर ये वो Zener वोल्टेज है जो एडजस्ट की जाती है, सेट की जाती है, सेटल की जाती है ड्यूरिंग फैब्रिकेशन और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। Zener diodes, they have highly doped PN junctions and they are normal diodes will also break down with the reverse voltage। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन जो है, अगर हम उसको भी रिवर्स वोल्टेज देते जाएं तो वो भी काम करेगा ब्रेकडाउन रीजन में, लेकिन उसकी वोल्टेज और उसकी जो शार्पनेस होगी वो इतनी अच्छी डिफाइंड नहीं होगी जितनी कि Zener डायोड की डिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि Zener डायोड में हमने बहुत हैवी डोपिंग की होती है, और Zener डायोड को हम ऑपरेट करते हैं इन द ब्रेकडाउन रीजन, इन द रिवर्स बायस मोड, and in the forward bias direction the Zener diode behaves like an ordinary diode। ये सारी बातें जो थी ये अभी हमने इसमें इन दो ग्राफ्स में, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में हमने ये स्टडी की हैं, ये वाली बातें। ठीक है, अच्छा, इसकी दो मेन एप्लीकेशंस हैं। वन इज द क्लिपिंग, ये क्लिपिंग भी करता है, और दूसरा जो है दैट इज द रेगुलेशन, इट इज यूज्ड एज अ रेगुलेटर। दोनों हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लिपिंग में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जितनी अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव पल्सेस यहां पर आ रही हैं एट द इनपुट ऑफ दिस सिस्टम, तो दिस इज द Zener डायोड, दिस वन, दिस इज द Zener डायोड। इसकी वोल्टेज इस एग्जाम्पल में क्या है, इट इज 20। अब ये काम ही तब करेगा जबकि यहां पर जो वोल्टेज है वो इसको दी जाए, ज्यादा दी जाए, 20 से अबव हो। और इसका काम क्या है, इस सर्किट का काम क्या है कि ये सर्किट क्लिप करेगा। क्लिप कैसे करेगा, जब ये वाला आएगा साइकिल, और ये देखें, इसको हम नेक्स्ट में कर लेते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन्ड है। दिस वन, जब ये वोल्टेज
20 से ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, व्हेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो व्हेन इट इज ग्रेटर, तो यहाँ पर आउटपुट पे आपको ये वाली जीनर की वोल्टेज, बिकॉज दिस आउटपुट एंड दिस दे आर इन पैरेलल, तो इस पे वो वाली वोल्टेज आएगी जो कि आपको यहाँ इस ब्रांच में नजर आ रही है। इस ब्रांच में इट इज 20 volts, so the same 20 volts will appear here, and when this voltage is lesser than 20.7 or 20, ये 20.7 कैसे आता है, क्यों आता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। When it is less than this, so it will give a straight line. यहाँ पर it will give this value, the clipped value, ये वाली clipped value आएगी, ये जो ब्लू में है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक पॉइंट पर इसको रखता है, इसकी अपनी वोल्टेज इज 20 volts, so it will keep it at 20 volts. दूसरे डायोड में क्या होता है कि आप जब देते हैं तो आप यहाँ पर एक डायोड के साथ इधर एक बैटरी भी ऑपरेट करते हैं, तब आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिल रहा होता है, ठीक है। और प्लस उसमें आप इसको शिफ्ट डाउन या शिफ्ट अप या ऊपर से क्लिप कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, और ये नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से आपको एग्जैक्टली 20 volts मिल रहा है फॉर दिस साइकिल, और दूसरे साइकिल में जस्ट बिकॉज दैट इज लेसर देन 20, तो वो आपको 0 देगा, एंड दिस विल बी अ क्लिप्ड वेव फॉर्म इन ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है Zener diode as a voltage regulator to regulate the voltage across small circuits, and the function of the regulator is to provide constant output voltage. Regulator का मतलब क्या है? Stabilize करना। जिस तरह आप लोग घरों में जो stabilizers use कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे appliances होते हैं, उनके साथ हमें recommend किया जाता है कि आप regulator stabilizers use करें। तो stabilizers क्या होते हैं? जैसे रेफ्रिजरेटर के साथ करना पड़ता है, फ्रीजर के साथ करना पड़ता है, एसी के साथ करना पड़ता है, कि अगर बाहर से कोई वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो वो उसको उस 220 से बढ़ने ना दे, जिस पे हमारा अप्लायंस काम कर रहा है वो उससे ज्यादा ना होने दे। ये उसका काम होता है स्टेबलाइजर का, वो स्टेबलाइज करता है, वो रेगुलेट करता है। इसी तरह से ये जो जीनर डायोड है फॉर स्मॉल सर्किट्स, इट रेगुलेट्स द आउटपुट वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसकी जो भी वोल्टेज है इस जीनर डायोड की, जो भी इसकी जीनर वोल्टेज डिसाइडेड बाय, सेटल्ड बाय, एडजस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, बाय द कंपनी, तो ये वाली जो वोल्टेज होगी वो हर वक्त इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टर में मिलती रहेगी, और वही हमें यहाँ पर आउटपुट पर भी मिलेगी। चाहे इनपुट ज्यादा हो, उससे जितनी भी ज्यादा हो जाए, वो हमें वोल्टेज जो है वो इतनी ही वोल्टेज हमें यहाँ पर देती रहेगी जो कि हमें इस जगह पर चाहिए है। आउटपुट वोल्टेज पे हमें जितनी वोल्टेज चाहिए है वो एग्जैक्टली वही होगी जो कि इस जीनर डायोड की वोल्टेज है। व्हाई? बिकॉज दिस रेजिस्टर एंड दिस डायोड, दे आर इन पैरेलल. So the output voltage, which is in parallel with the Zener diode, that will be the same voltage as the Zener voltage. जी, नेक्स्ट है हमारा ये इसकी थोड़ी सी समरी है कि Zener diodes को कौन सी वोल्टेजेस पे हमने करना होता है। They are basically designed to operate at the voltages greater than the breakdown voltage. Peak reverse voltage या peak inverse voltage जो मैंने आपको शुरू में बात की थी। Zener diodes are manufactured with a specific breakdown voltage. ये जो Zener voltage जिसको हम कहते हैं वो स्पेसिफिक एक खास वोल्टेज होगी हर डायोड के लिए। मतलब आपको जितने भी इसका वो चाहिए है, डायोड की जो Zener वोल्टेज होगी जो आपको चाहिए है, that will be provided by the manufacturer. वो वहां पर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वो एडजस्ट हो जाएगी, वो उसमें दी जाएगी। जी मैम, इसके सिर्फ वोल्टेज में फर्क होगा, मतलब जो Zener डायोड है और पीएन डायोड जो होते हैं ना, तो इनके सिर्फ वोल्टेज डिफरेंस होगा, मतलब क्योंकि तो मैन्युफैक्चरिंग में Zener का वोल्टेज वहीं से फिक्स हो जाता है
और जो पीएन होता है उसको तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बाकी तो इसका काम सेम होता है ना? काम सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है मैम सिर्फ वोल्टेज का वो आएगा हमेशा। जी। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, उसकी जो वोल्टेज होती है वो 0.7 होती है फॉर सिलिकॉन, फॉर जर्मेनियम दैट इज 0.3। लेकिन इसकी हम ऑल्टर कर सकते हैं, इसकी जब हम डोपिंग चेंज करते हैं तो इसकी वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी ना, इसकी वोल्टेज भी चेंज होती जाएगी ना जी। यस मैम, इसकी चेंज होगी लेकिन जीनर की चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो फिक्स होती है हमारे पास। नहीं, ये जीनर की बात कर रही हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद चेंज नहीं हो सकती, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के वक्त क्योंकि हम इसके पी और एन को हेवीली डोप कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसकी वोल्टेज जो है वो वहां पर फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। लेकिन एक बार जब वो मैन्युफैक्चर हो जाए फिर तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा ना? उसने वही वोल्टेज देनी है आपको, मैन्युफैक्चरिंग के बाद नहीं। और पीएन जंक्शन को तो हम एनी टाइम चेंज कर सकते हैं ना? पीएन जंक्शन की जो अपनी वोल्टेज है वो 0.7 है, वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो वो तो सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन की जगह हम कोई और मतलब यूज करें फिर वो होगा तो बिल्कुल फिर वो 0.3 होगा, अगर वो सिलिकॉन होगा तो 0.7 होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। ओके मैम, ठीक है। इनकी बेसिकली बात क्या हुई कि जो भी ये जो डायोड्स हैं, जंक्शंस हैं, ये इन दोनों की जो वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, टू ऑल्टर विद द मटेरियल, टू प्ले विद द मटेरियल, एंड दैट विल डिटरमिन दीस वोल्टेजेस। ठीक है, ओके मैम, सही है। तो उसी तरह से पैक किया जाता है जिस तरह के पीएन जंक्शन होते हैं। और जीनर डायोड्स जो हैं वो जैसे अभी हमने कहा कि दे आर यूज्ड टू स्टेबलाइज और रेगुलेट द वोल्टेज। ठीक है, यस मैम, सही है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, चलेंगे जब हमारी क्लास ओवर होगी तो फिर मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने ये स्लाइड्स जो हैं वो किस ऑर्डर में बनाई हुई है, ये मैं आपको आज एज इट इज ही भेज दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज आवर लाइट इमिटिंग डायोड। एनी फर्दर क्वेश्चंस? इसमें कोई और क्वेश्चंस है? मैम जी मैम, इससे पहले जो आपने अभी करवाया है ना वो 20 वोल्ट, वो नीचे नहीं आएगा, वो तो पॉजिटिव क्लिपर था ना? जी जी, तो आपने ग्राफ में वो 20 को ऊपर ड्रा किया था। ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाली जो वोल्टेज है एक्चुअली। हाँ जी, एक चीज और मैंने शायद, एक मिनट, यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी जी। डायोड जो काम करेगा ना, जब उसका नेगेटिव यहाँ होगा और पॉजिटिव यहाँ होगा तब काम करेगा। सही, ठीक है। ये इसका उलट है, क्योंकि ये रिवर्स काम कर रहा है। और जो हमारा आम जो डायोड होता है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ काम करता है। ये इसका ये वाला जो है, कि मैं इस डिटेल में ज्यादा गई नहीं हूँ, वरना कुछ इस तरह की एग्जांपल्स भी हैं। इफ यू वांट टू डू दो, आपका पेज नंबर 91, क्योंकि मैंने बुक आपको एक भेजी है, वॉइसटेड और नेशेल्स्की की मैंने एक बुक आपको भेजी है, उसमें पेज नंबर 21 पे ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग उसमें से ये देख सकते हैं। उसमें आपको ऑन और ऑफ स्टेट्स भी बताई हुई हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दोज ऑन एंड ऑफ स्टेट्स यू कैन फाइंड आउट आउटपुट। ये वाला जो है, ठीक है। ये बहुत, मैंने कुछ चीजें बीच में से स्किप की हैं कि क्योंकि हम इस वक्त ये नहीं पढ़ रहे कि ये क्लिपिंग कैसे करेगा, हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि ये क्लिपिंग करता है। मैम असल में लगा मैंने कैसे ना मैंने गलत असाइनमेंट करा। ठीक है, ठीक है। इसका थोड़ा सा जरा डिफरेंट है जी। मैम, ये जीना डायोड के लिए हम रिवर्स बायस जो आपने बात की है वो क्यों करते हैं, फॉरवर्ड बायस क्यों नहीं करते? Actually we want to make use of the avalanche, we want to make use of the breakdown। देखिए अभी हम आगे कुछ और डायोड्स भी पढ़ रहे हैं, तो जो अब अगर हम वो एवलांच यूज कर रहे हैं और ब्रेकडाउन का रीजन हम यूज कर रहे हैं जहां पर हो रहा है,
So that is beneficial for the regulation. हमारे कुछ पर्पसेस के लिए, जैसे रेगुलेट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, या कुछ उस तरह से क्लिप करने के लिए, तो जीनर डायोड हमें हमारे काम आता है. लेकिन देखिए पीएन जंक्शन के रीजन्स को यूटिलाइज करने के लिए कि उसका कोई भी हिस्सा हम उसका खाली ना जाने दें, हर रीजन को हम उसके हर एस्पेक्ट को हम उसके डिफरेंट यूजेस के लिए हम उसको अप्लाई कर सकें. दैट इज द रीजन. तो अगर हम हेवीली डोपिंग के साथ उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकते हैं, सो वी हैव मेड यूज ऑफ दैट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन द रिवर्स डायरेक्शन. अगर फॉरवर्ड में होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो फिर वही 0.7 वोल्ट्स देगा. लेकिन रिवर्स में हमने उसकी वोल्टेज को इतना ऑल्टर कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कि हम उससे कुछ चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं, कुछ सर्किट्स को रेगुलेट कर सकते हैं. इट्स जस्ट टू मेक यूज ऑफ द ब्रेकडाउन रीजन. अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसी तरह से इस रीजन में ही, जंक्शन में ही बहुत कुछ हो रहा होता है, और हमारे पास वो डायोड्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं. लाइट इमिटिंग डायोड में इट इमिट्स लाइट. हालांकि क्या हो रहा होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जाके एक स्टेबल, नॉट स्टेबल एटम, एक एटम के एम्प्टी उसमें वैकेंसी में, या उसमें आप कहते हैं कि होल में, या आउटर मोस्ट शेल के जो एक प्लेस होगी, एम्प्टी स्पेस होगी, वहां जाके पहुंच जाएगा, उधर ऑक्यूपाई हो जाएगा, एंड इट विल रिलीज एनर्जी, and that energy will be released in the form of photons that will be in the light. ये अभी हम करते हैं ना. ठीक है, मैं आगे चलूं. Is this the answer to your question, Shayan? यस मैम, वो आप आगे करेंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आगे हम करते जाएंगे, और इन दी एंड मुझे याद करवा दे, मैं आपको ये थोड़ा समराइज भी कर दूं. दोबारा मैं आपको बता दूं कि वी आर trying to make use of every aspect of the PN junction. That's it. Zener diode में breakdown use कर रहे हैं, light emitting diode में जो उसका falling है from the higher energy level to the lower energy level, we are making use of that. ठीक है. और light emitting diode जो है वो है that converts light energy, visible light energy into the electronic current, and that is usually a monochromatic wavelength. ठीक है. और एक वेवलेंथ पे, मोनोक्रोमैटिक मींस अ सिंगल वेवलेंथ, वो आपको मुझसे ज्यादा पता है, राइट? सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी? अब जैसे उसमें हम कह रहे थे कि उसकी वोल्टेज, जीनर डायोड की वोल्टेज फिक्स्ड होती है, जो कि रेगुलेशन के काम आती है, रेगुलेट करने के काम आती है, स्टेबलाइजेशन के काम आती है. अब एलईडीज जो हैं वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, वरना और भी बहुत सारे डायोड्स हैं, हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लस इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, इन सब को देखते हुए व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस दैट वी यूज एलईडीज? तो स्मॉलर साइज, बहुत बहुत स्मॉल साइज में ये अकर करते हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है और बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये. ठीक है. These are some of the advantages of LEDs. Now, what is an LED? LED is basically light emitting diode. ये इसकी डायग्राम है, और ये जो है, this one is the symbol. अगर आपको याद हो तो हमने जीनर डायोड, हम सिर्फ पीएन जंक्शन के लिए सिर्फ ये लाइन होती है, ये जो दो एरोज आउटवर्ड हैं ये नहीं होते हैं. जीनर डायोड में हमने ये लाइन और फिर उसके ऊपर ये स्लैंटिंग दो लाइंस थी which represented or resembled Z. Z क्यों? क्योंकि जीनर डायोड, एंड जीनर ही वाज द साइंटिस्ट, क्लेरेंस साइंटिस्ट है एक, जो कि जीनर के नाम से मशहूर है, और उसने ये ब्रेकडाउन का रीजन यूज करते हुए जीनर डायोड जो थे वो डिजाइन किया था. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई Z to resemble Zener, and the outward arrows to represent the outgoing light from the junction in the light emitting diode. इसमें भी P टाइप रीजन होगा, N टाइप रीजन होगा, और वही जंक्शन बनेगा. और जब ये फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन
यहां से फॉल करेगा फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द होल ऑफ द वैलेंस बैंड, it will radiate some energy and that energy will be in the form of light. ये आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में करते हैं, ठीक है? And this is the band gap or the forbidden gap. This is the valence band and this is the conduction band. ये आगे जो वर्किंग प्रिंसिपल है जो आगे मैंने कुछ इस फॉर्म में किया हुआ है and that will be very much clear to you इंशाल्लाह, ठीक है? This is basically एन एलईडी इस फॉर्म में होता है, ठीक है? और ये भी हम कर सकते हैं कि ये देखें यहाँ पर जो अगर आप एक्चुअली कभी हमें मौका मिला, हम फेस टू फेस मिले, तो इंशाल्लाह मैं आपको कोई एलईडी दिखाऊंगी कि वो किस तरह का होता है। यहाँ पर एक कट होता है इसका, दिस इज द कट which represents the negative lead of the LED and this is the positive lead. और यहाँ पर ये अगर आपको नजर आ रहा हो, if you can see this, ये जो पॉइंट है यहां पर वो पीएन जंक्शन है कि जहां पर जब रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है, when the electrons they fall down to the empty spaces in the or the holes in the valence band, so they radiate some energy and that energy is given in the form of light with the different forbidden gaps with different energies, and those energies they determine basically the type of the light or the color of the light. ये हम सारा भी डिटेल में करते हैं. So light emitting diode में क्या है कि you see here in the N region you have pentavalent materials and in the P type region you have trivalent materials. You have excess holes here and you have excess electrons here. अगर आपको याद हो तो हमने बैरियर की जंक्शन बैरियर की कंस्ट्रक्शन पे बात की थी, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको समझ आएगी कि यहाँ पर एक लाइन गायब है और यहाँ पर जो है वो एक लाइन मतलब उसमें होल्स नहीं है, दे आर रिकम्बाइंड विद द इलेक्ट्रॉन्स. These are the free electrons basically, ठीक है? कि पेंटावैलेंट में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो हमने पढ़ा था, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके जब जंक्शन के करीब आते हैं, so what happens? This electron it tends to go to the whole of this atom on p side. यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो गया और आके वो रिकम्बाइन कर गया यहाँ के एटम of p type which is near the junction. यहाँ पर चूंकि ये करीब करीब हैं तो इसको चांस ज्यादा मिला है यहाँ से आके रिकम्बाइन करने का इस होल के साथ, which means that it has come from here and it has fallen into the empty space or the vacancy of the atom near this point and it has recombined. ठीक है? इसी तरह से यहाँ का जो करीब था वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ के रिकम्बाइन कर गया. तो आप देखें कि यहाँ पर दिस हैव बिकम कॉलम ऑफ नेगेटिव आयंस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, सो दे हैव क्रिएटेड अ प्लस साइन, पॉजिटिव चार्ज ऑन देम. ये पॉजिटिव आयंस हो गए, ये नेगेटिव आयंस हो गए. ये वो वाले आयंस हैं जो कि अभी हमने जो पढ़े हैं जीनर डायोड के जंक्शन पे के पॉजिटिव और नेगेटिव जो बने हुए थे, वो ये वाले आयंस हैं कि वो कंप्लीट एटम्स थे ये वाले. ठीक है? यहां से इन्होंने लूज कर दिया और यहां से इन्होंने गेन कर लिया. सो दीज आर नेगेटिव आयंस, दीज आर पॉजिटिव आयंस. ठीक है? अब यहां पर क्या होगा कि ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये बन गया जंक्शन. अब जब हम इस जंक्शन के अक्रॉस अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, Zener diode is operated in the reverse bias and light emitting diodes are operated or it is used in the forward bias. क्योंकि we are making use of the falling of the free electrons into the empty spaces of the atoms.
the holes of the atoms in the valence band. हम इसका use कर रहे हैं. So this is connected to the positive terminal p type and n type is connected to the negative terminal of the battery. अब यहाँ पर क्या होगा कि this free electron, it will try to cross the barrier and will move to the hole of the atoms near the junction. Similarly, this free electron will try to move from here and go to this point. This will try to move from here and go to this point. अब यहाँ पर क्या होगा कि ये free electrons ये fall कर रहे हैं in the empty spaces of the atoms. तो ये कैसे काम करेंगे इसको हम देखते हैं. ये देखें कोई भी एक ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ये है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर दिस इज एन एटम और ये जो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रॉन इन द शेल क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये उसके बाद का है. अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को कुछ हम एनर्जी दें तो क्या होगा, वो इससे एक्साइट होके इधर आ जाएगा. ये एक्साइट होके नेक्स्ट शेल में चला जाएगा. कुछ और हम इसको एनर्जी दें तो ये यहां से एक्साइट होके ऊपर के शेल में चला जाएगा. और एनर्जी दें तो ये इससे सेल से बाहर ही चला जाएगा. That is the way the electrons gain energy and they tend to move out of the atom. ठीक है. अब यहां पर एक और काम क्या होगा कि you see, so just because this electron is a free electron, so obviously it has more energy than the electrons present in the bound shells. ठीक है. तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इसको एटम में कोई भी फ्री स्पेस मिलती है, कोई एम्प्टी स्पेस मिलती है, वहां पर जब ये फॉल करता है तो ऑब्वियसली इट हैज टू रिलीज एनर्जी. व्हाई? बिकॉज इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन द बाउंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है. अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर कोई स्पेस है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये क्या करेगा, इट विल हैव टू रिलीज इट्स एनर्जी टू कम डाउन टू द बाउंड, टू बी एज द बाउंड इलेक्ट्रॉन. और ये एनर्जी यहाँ आएगी और जब ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी यहाँ पर एनर्जी इसकी कम है, तो ये जब यहाँ आएगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. वो एनर्जी रिलीज होगी इन टर्म्स ऑफ अ फोटोन. ये जब इन फोटोन आएगा तो ये आपको ऑब्वियसली लाइट देगा. अब वो जो लाइट है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की हो सकती है. अब वो किस चीज पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप, इस फॉरबिडन एनर्जी पे. अब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर हैं, दे हैव द हायर एनर्जी, दे आर इन द कंडक्शन बैंड, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दिस इज द वैलेंस बैंड, and it has lower energy, so the conduction band energy is higher than the valence energy. So when an electron, it comes from the free state to the bound state, it falls from the conduction band to the valence band, it releases energy. When this energy is released, so it is usually equal to E is equal to h nu. ठीक है. Now this forbidden gap, this gap, the energy gap between the conduction band and the valence band, this forbidden gap basically determines the type of the light. When the energy gap or the forbidden gap is greater, this energy is greater. If this energy is greater, so the frequency is greater. For example, infrared light has a smaller frequency
So it means that the band gap is smaller. If this forbidden gap is smaller, the energy is smaller, and hence just because this energy and the frequency, they are directly related, so this will be smaller. इंफ्रारेड को एक छोटी सी टिप है याद करने के लिए, आप ये कर लें कि इंफ्रारेड रेड एंड रिड्यूस्ड, red and reduced, it means that infrared has a smaller frequency, which means it has a smaller band gap here. Forbidden gap will be smaller, so the frequency of the infrared will be lesser. लेकिन दूसरी तरफ है अल्ट्रावायलेट या ब्लू लाइट जो है, तो ये गैप जो है ये ग्रेटर होगा, बहुत ज्यादा होगा, लार्ज होगा, ब्लू एंड लार्ज। तो जितना ये लार्ज होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, और इस बैंड गैप को कंट्रोल करते हुए वी कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। वी कैन हैव डिफरेंट कलर्स इन LEDs डिपेंडिंग अपॉन द फॉरबिडन बैंड गैप। ये गैप जितना हम कंट्रोल करेंगे उतनी ही उसकी जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो उसके मुताबिक कंट्रोल होगी। ठीक है, सो इफ वी वांट टू हैव द इंफ्रारेड, सो दिस frequency should be lower, should be reduced. If we want to have the blue, so this frequency should be greater by creating a large band gap between the conduction band and the valence band. How is this possible? This is possible by different choices of the materials. ये जो P type material है, N type material है, ये materials की जो choice है वो determine करती है the color, the forbidden band gap between the conduction band and the valence band, and hence the frequency of the light. ठीक है, और जो भी उससे कलर साथ में उसके साथ एसोसिएटेड है वो इससे डिटरमिन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेड लाइट लेना चाहते हैं, ये LED ऐसा है जो कि रेड लाइट देना, उसका काम है कि वो रेड लाइट जनरेट करे, तो उसके लिए हम चॉइस करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये वाला। ठीक है, तो जो P टाइप होगा वो गैलियम से बनेगा, और आर्सेनिक और फॉस्फोरस के 60 और 40% की कॉम्बिनेशन के साथ वी कैन मेक N टाइप, ये बनेगा। और फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जब यहां आएगा तो इट विल जनरेट सम एनर्जी that will be of the level of 1.8 something like that, and that will generate the red light. ये वाला जो बैंड गैप है ये रेड लाइट को जनरेट करेगा। और फिर अगर हम इसको और भी चेंज करना चाहें, मतलब ब्लू लेना चाहें, तो फिर हमें डिफरेंट वो लेने पड़ेंगे, डिफरेंट मटेरियल्स लेने पड़ेंगे। आगे एक मैंने टेबल भी शो किया हुआ है जो कि आपको सारे कलर्स जो है वो बताता है। ये जैसे रेड के लिए ये वेवलेंथ है, तो ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। रेड और ऑरेंज के लिए ये है, ग्रीन के लिए ये वैल्यू गिवन है, सायान के लिए ये है, और इस तरह से ब्लू के लिए ये वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन ये जो मैंने डायग्रामेटिक सारा को मैम हमें किस तरह पता चलेगा कि इस कलर के लिए हमने ये वाला एलिमेंट यूज करना है? ये तो ये आपने नहीं करना, आपको ये मिलेगा। आपने रेड कलर यूज करना है, आपने व्हाइट कलर यूज करना है, आपने ब्लू करना है, आपने ग्रीन करना है। डिफरेंट कलर्स के ये बने हुए हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को इस टेबल का पता होना चाहिए। इसका ये जो कुछ फैब्रिकेट कर रहे होंगे, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ये कलर जानती हैं। ये हमारे समझने के लिए है कि रेड के लिए ये होना चाहिए है, रेड और ऑरेंज के लिए ये होना चाहिए है, ग्रीन के लिए ये होना चाहिए। ये हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस।
ये हम सिर्फ और सिर्फ हमें जब मिलेगा, मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, उसमें डिफरेंट कलर के एलईडी मौजूद है। यू जस्ट हैव टू यूज देम, आपने सिर्फ उनको यूज करना होता है, ठीक है। ये है, और ये थोड़ा बहुत मैंने उसमें वर्ड्स में भी ये सारा इंट्रोडक्शन दे दिया। और मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि ये जो मैं ये वाला जो एनवायरनमेंट यूज कर रही हूँ, ये टू गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायोड, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, ये उसके लिए है। लेकिन अगर आप ये वाली डायग्राम्स भी यूज करना चाहते हैं पेपर में या जहां कहीं भी, तो यू कैन यूज देम। और दूसरे ये कि यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, और अगर आपको चाहता है उसके लिए भी मैंने बीच में ये स्लाइड्स ऐड कर दी हुई हैं कि जैसे LED is an acronym for light emitting diode. It is basically a two-terminal semiconductor source or device. It is a PN junction diode and it emits light when activated by the suitable amount of energy or voltage. ठीक है, ये फिर कंस्ट्रक्शन है, दिस इज ऑप्शनल, लेकिन अगर कोई जानना चाहे तो वो ये भी पढ़ सकता है कि ये जो है ये इस चिप पे, सेमीकंडक्टर की चिप पे बेस्ड होता है। ये वाला वो पोर्शन है जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि इस जगह पर इसको पीएन जंक्शन जो है वो गिवन होता है, जो कि आपको फिर लाइट एमिट करता है। और इसकी माउंटिंग का जिक्र है, इसके कॉन्टेक्ट का जिक्र है, और इसकी प्लास्टिक केसिंग का जिक्र है। दैट्स इट। वर्किंग क्या है? वर्किंग वही सारे कुछ ये वर्ड्स में गिवन है जो कि हमने पीछे स्टडी किया है, ठीक है। और ये सारा ये सब इसकी वर्किंग है। और ये देखें, जैसे हमने कुछ जो मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, और बहुत सारे और वो हैं, गैलियम इंडियम फॉस्फाइड है, बहुत सारी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं मटेरियल्स की। When you use those materials, you can alter with the colors, with the frequency, with the band gap. ठीक है, यहां पर मटेरियल्स नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्लाइड है जो कि हर कलर के लिए उसके डिफरेंट मटेरियल्स भी गिवन है। मैं वो भी आज ऐड कर दूंगी, आज नहीं तो कल कर दूंगी, और फिर मैं आपको ये भिजवा दूंगी, ठीक है। ये उसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें देखें इंफ्रारेड के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हैं। फिर इसकी रेड रेंज है, एम्बर है, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, और ये इसका सिंबल यहाँ पर भी है। और जो एलईडी होता है वो यूजुअली इस तरह का दिखता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इंडिकेटर्स। मैम जी, ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बस इतना काफी है, वो मदरसे भी जाना है और नमाज के लिए भी तैयारी करना है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये वाली स्लाइड खत्म करने दें, फिर मैं एंड करती हूँ। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, सो इंडिकेटर्स हैं, सिग्नल्स हैं, और लाइटिंग के लिए आजकल एलईडी लाइट्स भी आपको नजर आती होंगी, सुनने को भी मिलता होगा। और क्योंकि ये इंफ्रारेड भी करता है तो रिमोट कंट्रोल्स में भी यूज हो जाता है, ठीक है। और डेटा कम्युनिकेशन के लिए और सिग्नल्स को बुक करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उनके काम आता है। और ये देखें, ये है बेसिकली एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये व्हाइट लाइट भी करेगा, ये रेड है, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ये वाला ग्रीन। और सिग्नल्स में ये जो सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, उसमें भी ये काम आता है। ये कहलाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये जो है, लेट मी शो इट टू यू, ये दिस इज अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अक्सर बाज़ जगहों पे, पहले पेशावर में भी था, लेकिन अभी इस्लामाबाद में बहुत सारे सिग्नल्स पे डिजिट्स लिखे हुए आ रहे होते हैं कि इतना टाइम रहता है, इतना टाइम रहता है, वो काउंट डाउन हो रहा होता है। दोज आर द 7 सेगमेंट डिस्प्लेज। और ट्रैफिक सिग्नल्स, ये वाले जो सिग्नल्स हैं, इसमें भी ये यूज हो रहा है आजकल। आपकी जो गाड़ियां हैं, ये देखें, दीज आर एलईडी सिग्नल्स। ये इसके अंदर आप देखें तो छोटी छोटी सी लाइट्स हैं। इट इज एन एरे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलईडीज। और यहाँ पर आजकल जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं, उसमें भी एलईडीज यूज हो रही हैं। फिर जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे
स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और मॉल्स वगैरह हैं, जहां पर कुछ अगर डिस्प्ले करना चाहें तो एलईडीज वहां पर भी यूज हो रहे होते हैं, जैसे ये देखें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड्स। और अब जी आप बताएं कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बस जी। अभी हमने पढ़ा ना कि हम जब एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन मतलब नीचे लेवल से ऊपर शेल्स में चले जाते हैं, मतलब एक्साइटेशन होती है। तो वो एक्साइटेशन पी टाइप मटेरियल में होती है या एन टाइप मटेरियल में। और दूसरी बात ये कि हम तो एक्साइटेशन करते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि ये जो डी एक्साइट होती है तो ये 10⁻⁸ सेकंड में अगेन डी एक्साइटेशन होती है। तो जब खुद की डी एक्साइटेशन होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह इस खाली जगह को फिल करते हैं? एक मिनट, हम उधर वापस चले जाते हैं। जी जी असद, आप जरा बात करें 10⁻⁸ की। मैम हमने ये पढ़ा है ना कि अगर हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे लेवल से ऊपर शेल में चले जाते हैं, मतलब एक्साइटेशन होती है। तो फिर ये एटम जो है 10⁻⁸ सेकंड या 10⁻12 सेकंड इसमें इसकी अगेन डी एक्साइटेशन होती है। तो जब ठीक है, खुद एक इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, डी एक्साइटेशन अगेन होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह वहां जाकर वो खाली जगह पर करते हैं, तो वो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चला जाता है? अच्छा देखें, एक तो ये है असद कि यहाँ पर हमारे पास देखें, हमने बहुत कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है with the help of the selection of the materials। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल्स जो है वो बहुत कुछ यहाँ पर वो कर रहा है।